السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ رب کائنات محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، آمین۔ صوبہ پنجاب کے علاقے رجحان اور کوہ سلمان کے ندی نالوں میں طغیانی سینکڑوں بستیاں متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ کئی دیہاتوں کا رجحان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ رجحان میں جاری موسلادھار بارش سے کوہ سلمان کی ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ درزنگی سمیت دیگر دروں سے پانی کا ہزاروں کیوسک ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی پانی کچھی کنال کے اوپر سے بھی گزرنے لگا ہے۔ سیلابی پانی بہت تیز ہونے کے سبب رہائشی آبادیوں کی جانب بڑھنے لگا ہے۔ شاہوالی اور اوزمان کے مختلف بستیاں زیر آب آ گئیں۔ کئی دیہاتوں کا رجحان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کپاس اور پیاز کی فصلوں کی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ کوٹ مٹھن اور رجحان میں کچے کے علاقوں میں فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ درسین میں مظفر گڑھ اور لیا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ بدین میں بارشوں کے باعث سیم نالوں میں شگاف سے کئی دیہات اور فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ بلوچستان میں بارشوں کے بعد سیلابی ریلے جانیں لینے لگے۔ مختلف حادثات میں اب تک 8 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوسٹل ہائی وے کا پل بھی بہا لے گیا۔ بی بی نانی پل میں شگاف پڑا تو سندھ پنجاب کی کوئٹہ کے لیے شاہراہ بند ہو گئی۔ ڈیرہ بگٹی میں 4 سے 5 فٹ تک گھروں میں پانی جمع ہے۔ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل، لیکن سامان پانی میں تیرتا رہا۔ متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ متحرک ہے۔ بر وقت کارروائیوں سے ہب کے ریلے میں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکالا جا چکا ہے۔ بارشوں نے اندرون سندھ بھی تباہی مچا دی۔ نئے گاج ڈیم کو بھی شدید نقصان پہنچنے سے فیلڈ پروٹیکشن بند میں شگاف پڑ گیا۔ دادو کے 12 دیہات زیر آب آ گئے۔ کراچی کے بعد سندھ میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ضلع دادو میں شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے گاج ڈیم متاثر ہو گیا۔ ڈیم کا پانی دیہاتوں میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں دادو کے 12 دیہات زیر آب آ گئے۔ سینکڑوں مال مویشی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ مقامی انتظامیہ منظر سے غائب ہو گئی تو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی۔ مقامی شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں تو پاک فوج مدد کو آگے آ گئی۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی ٹیمیں بارش سے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئیں اور آرمی انجینئرز نے موٹر بوٹس کے ذریعے ریسکیو کا عمل شروع کر دیا۔ ISPR کے مطابق آرمی میڈیکل کور کی ٹیمیں متاثرین کو ریلیف فراہم کر رہی ہیں، جبکہ متاثرین کو خوراک اور رہائش کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ صادق آباد میں چمن مائنر میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے کپاس کی فصل زیر آب آ گئی۔ پانی قریبی آبادی میں بھی داخل ہونا شروع ہو گیا۔ چمن مائنر میں 139 سلف کے مقام پر 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف کے باعث کپاس کی کئی ایکڑ کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں، جبکہ پانی قریبی آبادی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ تاحال امدادی کارروائیاں شروع نہیں کی جا سکیں۔ محکمہ انہار کے حکام کا کہنا ہے کہ چمن مائنر کا پانی بند کر دیا ہے۔ عملہ بھی روانہ ہو چکا، جلد شگاف پر کر دیا جائے گا۔ رحیم یار خان کے علاقے ٹھلمزہ میں ہونے والی مونسون کی بارش کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ٹھلمزہ سے فیاض احمد۔ رحیم یار خان کے علاقے ٹھلمزہ میں 24 گھنٹے قبل برسنے والی مونسون کی پہلی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ نکاسی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بارشی پانی سڑکوں پر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ آنے جانے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بارشی پانی سڑکوں سے نہ نکالا جا سکا۔ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے سڑکوں پر جمع بارشی پانی کو کیچڑ ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، سچ ٹی وی ٹھلمزہ۔ دادو میں بارش کا پانی بے قابو ہو گیا۔ ندی نالوں میں طغیانی، پانی کے ریلے نے تباہی مچا دی۔ پاک فوج متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی دورہ کیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سندھ کے ضلع دادو میں کیل تھر کے پہاڑی سلسلوں میں بارشوں سے ندی نالے بھر گئے ہیں۔
तहसील जोही के इलाके काचू के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी आ गई है, जबकि कई देहात मुतासर और मुतअद्दिद ज़ेरे आब आ गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जोही पहुंचकर सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों और FP बंद का दौरा किया। मुतासर होने वाले तमाम इलाकों का फज़ई और ज़मीनी जायजा भी लिया। सैलाब की तबाही पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह महकमा आबपाशी और जिला इंतजामिया पर सख्त बरहम हुए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम के साथ है। वज़ीर आला सिंध का मजीद कहना था कि जोही को आफतज़दा इलाका करार दिया जाएगा और मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। सैलाब में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते जोही में मौजूद हैं। सैलाब में फंसे मुतअद्दिद अफराद को निकाल लिया गया है, जबकि दीगर को निकालने का काम जारी है। बरसाती नाले में फंसे अफराद को कश्तियों की मदद से निकाला गया है। मुतासरीन के लिए सरकारी तालीमी इदारों की इमारतों में आर्जी कैंप कायम कर दिए गए हैं। माहौलियात की तब्दीली ने जिला खैबर का माहौल ही बदल दिया। शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह पर लगाए गए पौधे कुछ देर बाद अपने इख्तिताम को पहुंच गए। मुहिम टाइगर फोर्स और मकामी लोगों की हुल्लड़बाजी का शिकार हो गई। शजरकारी मुहिम में हुल्लड़बाजी, लगाए पौधे उखाड़ दिए गए। DC ने पहले इफ्तिताह किया, अब कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जिला खैबर में शजरकारी मुहिम हुल्लड़बाजी की नजर हो गई। बाड़ा के इलाके मंडी कस्बे में मुजाहिरीन ने लगाए पौधे उखाड़ दिए। मुजाहिरीन का कहना है कि हम थे पूछे बगैर हमारी जमीनों पर टाइगर फोर्स ने पौधे लगा दिए। जाती जमीन पर सरकार नहीं, हम खुद ही पौधे लगा सकते हैं। DC ने बाड़ा मंडी कस्बे में बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया तो कुछ देर बाद मुश्तइल अफराद ने सारे पौधे उखाड़ दिए। वजीर आला ने पौधे उखाड़ने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। DC का कहना है कि 2 फ्रीकैन का तनाजा है, कानूनी कार्रवाई के लिए जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को सरसब्जो शादाब और आलूदगी से पाक बनाने का मिशन का आगाज हो गया। वनडे प्लांटेशन ड्राइव के तहत एक दिन में 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सरसब्ज पाकिस्तान वन डे प्लांटेशन ड्राइव का आगाज, एक दिन में 45 लाख पौधे लगाने का हदफ। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को सरसब्ज शादाब और आलूदगी से पाक बनाने के मिशन का आगाज हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है, जिससे निपटने के लिए शजरकारी इंतहाई अहम और नागुज़ीर है। इमरान खान ने टाइगर फोर्स और तलबा समेत पूरी कौम से शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाना हमारा हदफ है। वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत मुल्क के कई शहरों में पौधे लगाए गए। पारा चनार के जिला कुरम में महकमे जंगलात ने क्लीन एंड ग्रीन प्लांटेशन प्रोग्राम के तहत एक ही रोज में 1 लाख पौधे लगाए। मुहिम में तलबा, जिले इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और एहलकारों और कबायली अमायदीन ने हिस्सा लिया। क्लीन एंड ग्रीन शजरकारी मुहिम के तहत जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में आज 1 लाख पौधे लगाए गए। मुहिम में कबायली अमायदीन, जिले इंतजामिया और स्कूल के बच्चों के मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान और एहलकारों ने हिस्सा लिया। शजरकारी में हिस्सा लेने वाले अफराद से खिताब करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली सैयद इकबाल और असिस्टेंट कमिश्नर उमर अहमद खान ने कहा कि जिला कुरम जैसे जन्नत नजीर खित्ते में शजरकारी से मजीद खूबसूरती बढ़ेगी। इस मौका पर कबायली अमायदीन का कहना था कि वो अपनी जमीनों और पहाड़ी सिलसिलों में पौधे लगाने की मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए जिले इंतजामिया मैदान में आ गई। मालाकंड से आमिर अब्बास की रिपोर्ट। सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान बनाने के लिए मलाकंड इंतजामिया MNA जुनेद अकबर और MP शकील खान टाइगर फोर्स और अवाम मलाकंड की इलाके पले पहुंच गए। इस मौके पर MNA जुनेद अकबर ने बताया, इनमें हमने 4 लाख पौधे बनाकर एजेंसी में लगाने हैं और आज हमारा इरादा है कि 50,000 4 लाख हमारा टारगेट है मलाकंड के लिए और 50,000 इंशाल्लाह आज हम लगाएंगे। ये टाइगर फोर्स की ताउन से और टीम की ताउन से और बाकी जो सिविल डिफेंस के लोग हमारे साथ ही, बाकी और वॉलंटियर हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह इसकी ताउन से हम आज लगाएंगे। डिप्टी कमिश्नर रयान गुल खटक और MNA जुनेद अकबर और MP शकील खान ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की विजन के मुताबिक पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाना है। ये जो प्रोजेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का है और इसमें हमारा टारगेट है 10 बिलियन का।
تو آج اس کا باقاعدہ ہم اناگوریشن کر رہے ہیں. ٹائیگر فورس اور سول ڈیفنس اور سول سوسائٹی کی وہ پلانٹیشن کروا رہے ہیں. تقریب کے آخر میں ایم پی اے اور ایم این اے انتظامیہ ٹائیگر فورس کے ہمراہ عوام کی کثیر تعداد پہاڑوں میں پھیل گئی اور اپنے حصے کا ایک ایک پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دی. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے حصے کا ایک ایک پودا لگا کر پاکستان کو سرسبز اور شاداب بنائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر عباس، سچ نیوز. چکوال میں بھی ٹائیگر فورس ڈے منایا گیا. اس حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر چکوال اور صوبائی وزیر راجہ یاسر نے پودے لگائے. راجہ ثاقب عباس کی رپورٹ. پورے ملک کی طرح چکوال میں بھی ٹائیگر فورس ڈے منایا گیا. اس حوالے سے چکوال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز، ڈپٹی کمشنر چکوال عبدالستار احسانی اور ٹائیگر فورس کے جوانوں نے شرکت کی. اس موقع پر راجہ یاسر ہمایوں سرفراز، ڈپٹی کمشنر اور ٹائیگر فورس کے جوانوں نے پودے لگائے. سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر چکوال اور ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر نے کہا 51,000 ٹریز جو ہے نا ہم اس سیزن میں لگا رہے ہیں اور آپ کے توسط سے میں اپنے باقی جتنے ہمارے لوگ ہیں سٹیزنز ہیں چکوال کے ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگی کہ درخت لگانے پہ نہیں اور ان کا دیکھ بھال کرنے پہ. تھینک یو. آج کے دن سے ہم 51,000 ہمارا ٹارگٹ ہے جس میں ہم سیل بھی کیے. رحیم یار خان میں بھی شجرکاری مہم کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں ٹائیگر فورس کے جوانوں اور سول سوسائٹی نے شرکت کی. حسن رحمانی کی رپورٹ. ملک بھر کی طرح رحیم یار خان میں بھی آج ٹائیگر فورس ڈے منایا گیا. اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان علی شہزاد، ایم پی اے عامر نواز خان، ضلعی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی راجہ سلیم سمیت ٹائیگر فورس کے جوان، خواتین، عہدیداران اور سرکاری اداروں کے سربراہان نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے کہا کہ درخت دراصل کرۂ ارض کے پھیپھڑوں کا کام کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان گرین اینڈ کلین پاکستان مشن کو پورا کرنے کے لیے رحیم یار خان مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں ٹائیگر فورس کی محنت اور لگن قابل داد ہے. انہوں نے بتایا کہ آج 3,000 پودے لگا کر مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں رحیم یار خان میں 35 لاکھ نئے پودے لگائیں گے. تقریب سے ایم پی اے عامر نواز خان سمیت تحریک انصاف کے عہدیداران اور سرکاری اداروں کے سربراہان نے خطاب کیا. تقریب کے بعد ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان نے ربن کاٹتے ہوئے پودے لگایا اور شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کیا. اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، خواتین، عہدیداران، سول سوسائٹی اور ٹائیگر فورس کے جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حسن رحمانی، بیورو چیف سچ نیوز، رحیم یار خان. درختوں کا ماحولیاتی آلودگی کم کرنے میں کلیدی کردار ہوتا ہے. لیا میں پلانٹ فار پاکستان ڈے منایا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر منتخب عوامی نمائندوں نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. ظہور دورانی کی رپورٹ. درختوں کا ماحولیاتی آلودگی کم کرنے میں کلیدی کردار ہوتا ہے. حکومت کی جانب سے شجرکاری مہم گزشتہ 2 سالوں سے زور و شور سے جاری ہے. آج لیا میں پلانٹ فار پاکستان ڈے منایا گیا. اس دن کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر لیا، منتخب نمائندوں اور ٹائیگر فورس کے جوانوں نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لیا اور ایم پی اے شہاب الدین سیار کا میڈیا سے گفتگو کے دوران کہنا تھا، آج 9 اگست کو اس وقت ہم کچہری روڈ پر موجود ہیں اور آج ہم ٹائیگر فورس ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے جناب عمران خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان کے حکم پر. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹائیگر فورس ڈے کے حوالے سے جو انتہائی مثبت ایکٹیویٹی آج ہو رہی ہے وہ ٹری پلانٹیشن کی ہو رہی ہے. اور ہم یہاں پر اس گراؤنڈ میں ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں ہمارے بچے اور بھائی وہ یہاں پر ابھی پودے لگائیں گے. اس دن کے حوالے سے ٹائیگر فورس نے جو پہلے بھی مختلف پیچھے احساس پروگرام ہو، بہت ساری چیزیں ہوں، ٹائیگر فورس نے جو خدمات انجام دی ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، جیسے ڈی صاحب فرما رہے تھے کہ 2,500 پودا آج یہاں سے ہو رہا ہے. بعد ازاں ٹائیگر فورس ڈے کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مقررین نے ٹائیگر فورس کے کورونا کے دوران خدمات کو سراہتے ہوئے ٹائیگر فورس کے کردار پر ان کو خراج تحسین پیش کیا. کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا. مظفر گڑھ کے علاقہ سلطان کالونی میں بلین ٹری منصوبے کے تحت ہزاروں پودے لگائے گئے. ٹائیگر فورس کے سینکڑوں رضاکاروں سمیت شہریوں اور اساتذہ نے پودے لگائے. محمد عمر کی رپورٹ. سلطان کالونی میں ٹائیگر فورس کے دن کے موقع پر بلین ٹری پروجیکٹ کے تحت تقریب منعقد ہوئی. شاہ والا جنگل میں منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین اور پنجاب کے صوبائی پارلیمانی سیکرٹری اشرف رند تھے. تقریب میں ٹائیگر فورس کے سینکڑوں رضاکاروں سمیت عام شہری اور اساتذہ نے بھی پودے لگائے. اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کا کہنا تھا کہ الحمدللہ یہاں پر ایک کمپارٹمنٹ میں ہم نے 7,000 پودے لگائے ہیں اور باقی کمپارٹمنٹ ساتھ ساتھ تیار کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا پلان یہ ہے کہ ہر 15 دن کے بعد اسی طرح ہم یہاں اکٹھے ہوتے رہیں گے اور پودوں کی تعداد بڑھاتے رہیں گے. پانی کا انتظام بنا دیا گیا ہے یہاں پر. انشاءاللہ تعالی ان پودوں کی سروائیول اللہ تعالی نے کرنی ہے.
हमारा काम है, हम पौधे लगा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनको फल फूल लगाना है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला लगाएंगे। और पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की सरबराही में तमाम डिपार्टमेंट्स ने, टाइगर फोर्स ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिन्होंने इसको लीड किया और ये सारे पौधे प्रोवाइड किए, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे शामिल हुए और बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए। और ये आज पहला दिन है, कोई आखिरी दिन नहीं, और इंशाल्लाह ये जारी सारी रहेगा। कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का कहना था कि लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी खसूसी इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उमर खान, सच टीवी, सुल्तान कॉलोनी, मुजफ्फरगढ़। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टाइगर फोर्स डे को शजरकारी से मंसूब करने के अहकामात पर अमल करने में लुधियाना इंतजामिया भी पेश नजर आने लगी। एक दिन में 80,000 नए पौधे लगाए गए। नदीम पीरजादा की रिपोर्ट। जिला भर में आज शजरकारी मुहिम के दौरान जिलाई इंतजामिया और समाजी तंजीमों ने मुश्तरका तावन से 80,000 पौधे लगाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद अब्बास रजा का कहना था कि रवां साल में 5 लाख पौधे लगाकर जिला को मिलने वाला हदफ पूरा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने लीडर इमरान खान की विजन के लिए जो उन्होंने 9 तारीख को जो टाइगर फोर्स डे पे कॉल दी है, हमारी तमाम ज़िले क़यादत ख़वातीन विंग, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और तमाम ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे जो लीडर हैं इमरान खान, उनके विजन को पूरा करने के लिए टाइगर फोर्स डे हम यहाँ पे मना रहे हैं। हर बंदे ने यहाँ पर हम लोगों ने प्लांट्स लगाने हैं। प्लांट्स का जो है ये जो मुहिम है, ये उन्होंने बहुत पहले से हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम इसको पूरे पाकिस्तान में भी इसको लगा रहे हैं। और ये दिन इंशाल्लाह हमारा आज का जो हदफ है, पूरे पाकिस्तान में 35 लाख जो है पौधे हमने लगाने। इंशाल्लाह हम अपने हिस्से का पौधा लगाकर अब इस मुहिम में हिस्सा लेंगे और इसको कामयाब करेंगे। शजरकारी मुहिम बिला शोबा माहौल में खुशगवार तब्दीली का मुस्तंद जरिया है। दरख्त लगाकर अपने शहर और जिला को पुरफिजा माहौल से रोशनाश कराया जा सकता है। कैमरामैन टीम के हमरा नदीम अब्बास पीरजादा, नुमाइंदा सच न्यूज, लोधरा। चिश्तिया में टाइगर फोर्स डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शहर की अहम शख्सियात ने शिरकत की। राना इमरान की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ग्रीन एंड क्लीन विजन को आगे बढ़ाते हुए 10 बिलियन दरख्त की शजरकारी मुहिम दानिश स्कूल चिश्तिया में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी ADC बहावलनगर सैफुल्ला साजिद और ज़िले सदर PTI मलक मुजफ्फर थे। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए तमाम शुरका ने कहा, हम सरसब्ज़ व शादाब कर देंगे और इसमें हमारा ये पैगाम है कि इस मानसून में हमारा 10,50,000 पौधों का टारगेट है। पाकिस्तान के विजन के एम मुताबिक ये जो टाइगर फोर्स ट्री प्लांटेशन का डे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ सरकारी महकमे शामिल हैं, सिविल सोसाइटी शामिल है, टाइगर फोर्स हिमसेल्फ है और इसके अलावा PTI की लीडरशिप जो है वो हमें इसमें सपोर्ट कर रही है। तमाम तकरीब के मेहमान खुसूसी व शुरका समेत तमाम सियासी समाजी फर्दन पौधे लगवाए गए। कैमरामैन टीम के साथ राना इमरान, अफजल, सच न्यूज, चिश्ती। चकवाल के इलाके बलकसर में गरीब आवाम के लिए अल खदीजा मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह MPA और चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन सरदार आफ्ताब अकबर ने किया। राजा साकिब की रिपोर्ट। चेयरमैन जाबिर बिन हयान ट्रस्ट अल्लामा शेख मोहसिन अली नशफी के ताउन से चकवाल के इलाके बलकसर में अल खदीजा मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब मेडिकल सेंटर में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी MPA व चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन सरदार आफ्ताब अकबर खान और अल्लामा आगा मोयुद्दीन काजिम थे। जबकि इफ्तिताही तकरीब में इलाके के मुअज़्ज़ शख्सियत व दीगर ने भी शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह इदारा खासतन खिदमत के लिए बनाया गया है, जो एक खुश आइंद बात है। ये अदारा एक खिदमत खल्क का अदारा है, चाहे वो बच्चों और बच्चियों की तालीम को हो, चाहे वो मेडिकल से वाबस्ता हो, ये खिदमत के लिए बनाया गया है। जबकि आगा मोयुद्दीन काजिम और इलाके की मुअज़्ज़ शख्सियात ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इस इक़दाम को सराहा। ये अस्पताल खालिसतन मुस्तहिक लोगों के लिए जो अपना इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए फ्री कायम किया गया है, जहां मरीज़ों का चेकअप भी फ्री होगा और अद्वियात भी उनको फ्री दी जाएंगी। देखो जी, ये जो खदीजा मेडिकल सेंटर हमारे इलाके में खुला है जी, इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत हो गई, ख़ुसूसन गरीब नादार लोग
जो कि बड़े बड़े अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। ये मेडिकल सेंटर जो बनाया गया खतीजा, ये इंतहाई अच्छा इकदाम है, लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है, सहूलत मुयसर होगी मेडिकल की। सरदार आफ्ताब अकबर ने इस मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह किया और मेडिकल सेंटर के मुख्तलिफ शोबे देखे। इस मेडिकल सेंटर में गरीबों का इलाज मुफ्त और अद्वियात भी मुफ्त मुयसर होंगी। ये मेडिकल सेंटर हौज़े इल्मिया ज़ैनबिया के प्रिंसिपल अल्लामा मोहम्मद तहसीन की ज़ेर निगरानी चलेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। चकदरा चित्राल सीपैक मोटरवे मनसूबा बहाली के लिए जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम तिमरगरा में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रहमतुल्लाह सबाती की रिपोर्ट। दीर चतराल मोटरवे की बहाली की गरज से जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम तिमरगरा में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें लोअर दीर, अपर दीर, बाजवड़, अपर चतराल और लोअर चतराल के मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली, वकला, ताजिर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साफी, ठेकेदार बिरादरी, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदों ने शिरकत की। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने चकदरा चतराल CP1 रोड की बहाली और दीर डिवीजन के क़याम का मुतालिबा कर दिया, जबकि चकदरा चतराल CP1 मनसूबे को ड्रॉप करने के खिलाफ 15 अगस्त को यूमी साया मनाने का फैसला किया गया। की आवाम इंशाअल्लाह अपना हक छीन सकता है और हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन अगर तंग आमद भजंग आमद अगर हमें इस पे मजबूर किया गया तो हम हर चकदरा इंटरसेक्शन को है, इंटरचेंज है, हम इसको ब्लॉक करेंगे। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की शुरका ने फैसला किया, अगर हुकूमत ने चकदरा चतराल बाजवड़ CP1 रोड मनसूबे को बहाल नहीं किया तो मज़कूर अब 5वीं अजला में शटर डाउन और पैजाम हड़ताल के अलावा अदालत से भी रुजू करेंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दीर। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान अहमद और सेक्रेटरी ज़राअत वासिफ खुर्शीद की हिदायत पर स्पेशल टीम ने जैमपुर का दौरा किया। पाकिस्तान की नकद आवर फसल कपास की बेहतर पैदावार और इंटरनेशनल मार्केट के मियार के मुताबिक कपास की फसल की बढ़ोतरी के लिए वज़ीर ज़राअत पंजाब और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब की हिदायत पर स्पेशल टीम ने जैमपुर के इलाका मोहम्मदपुर दीवान में कपास की फसल का मुआयना किया। टीम ने कपास की फसल में जाकर पौधों और टिंडों को चेक किया। उन्होंने काश्तकारों को मुफीद मशवरे देते हुए कहा कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल कपास की फसल बेहतर है, हर दूसरे तीसरे दिन टिंडे निकल रहे हैं, जबकि इस साल ज़री अद्वियात पर भी कंट्रोल किया गया है। इस साल कपास की फसल काफ़ी बेहतर है। ये अगस्त का महीना है, इसमें फूल कलियां बहुत हैं और टिंडा बड़ी तेज़ी से बन रहा है, हर तीसरे दिन बाद एक टिंडा तैयार हो रहा है। इस लिहाज से इस पर इसकी निगहदाश्त की भी ज़्यादा ज़रूरत है। महकमा ज़राअत की टीमें जो हैं तमाम इलाकों में आ रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इत्तलात ज़राअत साउथ पंजाब नवीद असमत का कहना था कि कपास की फसल का मुआयना रोजाना किया जाएगा और हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग के अमल को जारी रखा जाएगा और स्प्रे शाम के वक्त किया जाए ताकि इसके बेहतर रिजल्ट सामने आए। काश्तकारों को बताया है कि रोजाना की बुनियाद पर अपनी फसल का मुआयना करें, हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग के नतीजा में जो भी कीड़ा मौशी नुकसान देहात पे हो उसके खिलाफ महकमाना सिफारिश करदा जहरी जहरों का स्प्रे करें और जहरी जहरें जो हैं वो शाम के वक्त प्रेफरेबली करें। काश्तकार का कहना है कि इस साल फसल अच्छी है और जरी अद्वियात भी मियारी थी। कहते हैं अगर दिलो जान से मेहनत की जाए तो वो रायगा नहीं जाती, जिसकी मिसाल महकमा ज़राअत के इस साल सामने जिसके नतीजे भी अच्छे निकल रहे हैं और उम्मीद है कि इस साल काश्तकार खुशहाली की जानिब गामजन होगा और उसके साथ ही मुल्क की माशत को भी सहारा मिलेगा। कैमरामैन मलिक उज़ैर तुफैल अहमद के साथ सच न्यूज़ राजनपुर। पाकिस्तान का यौम जश्न आज़ादी शाया निशान तरीके से मनाने के लिए हारून आबाद के शहरी पुरजोश हैं। जूं जूं पाकिस्तान का 73वां जश्न आज़ादी करीब आता जा रहा है, हारूनाबाद में इस हवाले से तैयारियां भी अरूज पर पहुंचती जा रही हैं। शहर की मरकजी शाहराह और बाजारों में जश्न आज़ादी के सामान की फरोख्त के सिलसिले में स्टॉल और दुकानें भी सज गई हैं, जहां से बच्चे, मर्द और खवातीन सजावट का सामान खरीदने में मसरूफ है। यूं तो हारूनाबाद के शहरी हर साल की तरह 14 अगस्त आज़ादी के दिन को मिली नगमों और तरानों के साथ जोशो जज्बे से मनाते हैं, लेकिन इस साल शहरियों में जोशो खरोश दीदनी है। यौम आज़ादी के मौका पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की तरफ से रंगारंग प्रोग्राम भी तरतीब दिए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि हारूनाबाद के शहरी भी मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह अपने मुल्क पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने में किसी से कम नहीं। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहर के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। हमारा परचम ये प्यारा परचम, परचमों में अजीम परचम। दुनिया में जितनी आजाद रियासतें उन सब का अपना कौमी परचम है जो हर रियासत की पहचान होती है। हमारे परचम में 2 कौमी नजरिया पूरी तरह जलवागर है। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम
पाकिस्तान के कौमी परचम की मंजूरी 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली में दी गई थी। ये कौमी परचम हमारी आजादी और कौमी वकार की अलामत भी है और जामिन भी। कौमी परचम पाकिस्तान की सलामती और दिफा का इस्तारा भी है। इस कौमी परचम को बुलंद करके ही हमें ये इफ्तिखार हासिल हुआ कि अब हम भी दुनिया के आजाद मुल्कों की सफ में शामिल हो गए हैं। जहाँ तक कौमी परचम के एहतराम का ताल्लुक है, हम इसकी हुर्मत और इज्जत पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि ये कौमी परचम हमारी आजादी और वकार का निशान है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का दिल अपने कौमी परचम की मोहब्बत से सरशार है। और एक कैप खरीदी है और एक खास तौर पर पाकिस्तान का एक परचम खरीदा है, क्योंकि मुझे अपने परचम से बहुत प्यार है और हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपने परचम को कभी झुकने नहीं देंगे। जीवे जीवे पाकिस्तान। और फिर कौमी परचम की इज्जत और हुर्मत उन सरबकफ मुजाहिदों और सफ शिकन सिपाहियों से पूछो जो पाकिस्तान की सरहदों पर अपनी जानें देकर पाकिस्तान से अपनी वफा को निभाते हैं। और मुल्क की सरहदों पर लहराता हुआ हमारा कौमी परचम ही इस अमर का मजहर होता है कि यहाँ से हमारे पाक वतन की मुकद्दस सरहदें शुरू होती हैं। हमारा ये सब्ज़ हिलाली परचम जो हमारे इस आज़ाद खित्ते का एक निशान है, इसको हम इसकी अजमत और अहमियत ये है कि पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान की शनाख्त है और इस परचम के ज़रिए ही हम अपने मुल्क का नाम जब रोशन करते हैं, बुलंद करते हैं। वतन अजीज की सरहदों के पासबान और निगहबान जब वतन की अजमत पर कुर्बान होते हैं तो उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए शोहदा के ताबूत पर कौमी परचम फैलाना जरूरी समझा जाता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जगह जगह लहराते पाकिस्तानी परचम देखकर ऐसा लगता है जैसे सब्ज हिलाली परचमों की शहर भर में बहार आ गई हो। बच्चे, बड़े, मर्द, खवातीन सब जश्न आज़ादी को मिली जज्बे के साथ मनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अगस्त का महीना शुरू होते ही बच्चों के अंदर जज्बा पैदा हो जाता है। झंडियाँ लगाने का, स्टिकर जमा करने, सारे झंडे लेने, ये सारे बच्चों के लिए जमा हो जाती हैं चीज़ें। और अभी से ही बच्चे स्टार्ट हो गए हैं स्टिकर लेने, दूसरी चीज़ें लेने के लिए। कहीं दुकानदार झंडे और झंडियाँ सेल करने में मसरूफ, कहीं बच्चे अपने मुल्क की मरम्मत के लिए चेहरों पर सब्ज हिलाली परचम सजाकर खुशहाल। लोगों में इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बा है। 14 अगस्त के हवाले से कोरोना के जब खुला है तो लोग बहुत ज्यादा खरीदारी के हवाले से हमारी शॉप पर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जैसे ही लॉकडाउन खुला है वहाँ में जज्बा बढ़ गया है 14 अगस्त के हवाले से। अब लोग बहुत ज्यादा इसको एंजॉय करने के लिए, खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। तो कौमी नजरिए पर कायम होने वाले प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तो मुल्क के हर कोने में अपने अपने अंदाज से हो रही हैं, लेकिन मियां चन्नू के शहरी भी किसी से कम नहीं। कैमरामैन बिलाल हुसैन के साथ जवेद इकबाल चांडिया, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, मियां चन्नू। उज शरीफ में भी यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए शहरियों ने सब्ज हिलाली परचम के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मुल्क भर की तरह उज शरीफ में भी 14 अगस्त करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज हिलाली परचम के स्टॉल सजा दिए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त जोश व खरोश से मनाने के लिए शहरियों की कसीर तादाद ने रुख कर लिया है सब्ज हिलाली परचम के स्टॉल पर, जहाँ पर बच्चे और बड़े पाकिस्तानी झंडे और झंडिया समेत बैज, माथा पट्टी खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। इस हवाले से शहरियों का मजीद कहना था। बच्चों के लिए झंडियाँ, परचम और स्टिकर वगैरह लेने आए हैं। हर साल की तरह इंशाअल्लाह इस बार भी जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मनाएंगे। मैं निजात हुसैन के साथ हाजी मोहम्मद तैर साथ के बुरेवाला से गुजरने वाली फरीद एक्सप्रेस 4 माह से बंद है। बुरेवाला से गुजरने वाली फरीद एक्सप्रेस जिसे अरसा तकरीबन 4 माह कबल लॉकडाउन की वजह से बंद किया गया था, इसे अभी तक बहाल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से लाहौर से कराची जाने वाले तकरीबन 32 स्टेशनों के शहरी रेलवे की सफरी सहूलियात से महरूम है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फरीद एक्सप्रेस को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। 4 महीने हो गए जी इस ट्रेन नू बंद किए हुए, हुण ते कोरोना का मसला भी चला गया जी। मेहरबानी करके इस ट्रेन नू चलाया जाए। गवर्नमेंट से अपील है कि ये बुरे वाली ट्रेन को बहाल किया जाए। और जो हम कराची जाने के लिए जहाँ पे खड़े हुए हैं, इसलिए ट्रेन यहाँ जब का लॉकडाउन बंद हुआ है इसलिए ये ट्रेन रुकी हुई है। ये गवर्नमेंट से अपील, हुकूमत से अपील है कि ये ट्रेन को बहाल किया जाए।
इस ट्रैक पर चलने वाली फरीद एक्सप्रेस पर रोजाना सैकड़ों मुसाफिर सफर करते थे, जो अरसा 4 माह से प्राइवेट बसों पर सफर करने पर मजबूर हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस ट्रेन को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि शहरी रेलवे की सफरी सहूलियात से इस्तेफादा हासिल कर सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, बुरेवाला। जिला इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के सबब सराय सिद्धू की गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सराय सिद्धू शहर में सेवरेज की नाकिस सूरत हाल, गली मोहल्ले गंदगी से भर गए। मेन गलियां गंदे पानी में गर्क, गंदे पानी में से गुजरते राहगीरों के कपड़े खराब होने लगे। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने में भी दुश्वारी पेश आने लगी। गलियों में खड़े पानी से गलियां सैलाब का मंजर पेश करने लगी। सेवरेज की नाकिस सूरत हाल की वजह से गलियों में खड़े पानी में बिजली के करंट आने से गरीब रेहड़ी बांध का बैल करंट लगने से मौका पर हलाक हो गया। सराय सिद्धू में सेवरेज का निजाम अरसा दराज से खराब है। इंतजामिया की तरफ से तवज्जो न देना एक सवालिया निशान है, जबकि ज़िलाई इंतजामिया को बार बार सेवरेज की नाकिस सूरत हाल पर निशानदही की गई मगर इंतजामिया को होश न आया। इलाका मकीनों ने मकामी MNA, MPA और DC खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी से पुरजोर मुतालबा किया है कि सराय सिद्धू में सेवरेज की सूरत हाल को देखते हुए फौरी निकासी के लिए इक़दाम करें। कैमरा टीम के साथ सईद अली रज़ा नकवी, सच न्यूज, सराय सिद्धू। महंगाई के तूफान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकर। जिले इंतजामिया की बेहिसी के बायस वादी क्वेटा में यूं तो पहले ही मसनूई महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना रखी है, मगर अब दूध फरोशों ने हुकूमती अदम तवज्जही का फायदा उठाते हुए दूध और दही की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया है। क्वेटा के मरकजी हिस्से समेत नवाही इलाकों में दूध की फी लीटर कीमत 110 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए, जबकि दही की फी लीटर कीमत 120 रुपए से बढ़ाकर 135 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। डेयरी फार्म समेत अक्सर दुकानों में सरकारी नखनामे भी अवेजा नहीं किए गए हैं, जिस पर शहरी शदीद तशवीश का शिकार हैं। जुबरी से दूध के बजाय पानी पिलाएंगे, क्योंकि उसके पास 130-120 रुपए कहाँ से आता है। वो तो किसी चौक पे रोजाने के लिए 300 के लिए शाम तक इंतजार करता है, वो भी कभी मिल जाता है, मजदूरी कभी नहीं मिलता है। तो ये बड़ा दुख की बात है, इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। दूध 110 रुपए से 125-130 के करीब पहुंच गया है। प्राइस कंट्रोल कमेटी के जितने मेंबरान है वो सिर्फ बराए नाम है, वो बैठे हुए, उस कमेटी का कोई मकसद ही नहीं रहा, क्योंकि जब अमल दरामद नहीं हो गया ऐसी कमेटी ऐसी चीज़ों पे जो है ना वो कमेटी बनाना फजूल रहती है। कोई पूछने वाला नहीं है, हर बंदा जो है ना अपना रेट जैसे मनमानी उसका चाहिए वही रेट तय करता है। आवाम जो है दर पदर है, मजदूरी है नहीं, लोग जो है ना बहुत परेशान है, गरीब लोग जो है ना। तो गवर्नमेंट से अला वकाम से हम लोगों का दरख्वास्त है कि इस पे थोड़ा नजरसानी करे। क्वेटा में गुज़श्ता कई माह से जिली प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई इजलास भी मुनक्किद नहीं हुआ है, इसीलिए मसनूई महंगाई में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, क्वेटा। थाना सदर पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करासन के हिदायत पर थाना सदर दुनियापुर पुलिस का SHO मोहम्मद इस्माइल की सरबराही में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सदर दुनियापुर के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल पोहर ने पुलिस टीम के हमरा नजायज असला रखने पर अब्दुल खालिक और इमदाद डोगर नामी 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से पिस्टल, पीस बोर, रिपीटर, 12 बोर, कारतूस और गोलियां बरामद कर ली। थाना सदर दुनियापुर पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करासन ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने पर थाना सदर दुनियापुर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा है। थाना सदर दुनियापुर के SHO मोहम्मद इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासर का खात्मा मेरी अवलिन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करासन की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा और जराइम पेशा अनासर के साथ एहतियातों से निपटा जाएगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। डेरकी के शहरियों ने सैर तफरी के लिए दरियाए सिंध का रुख कर लिया है। कोरोना की वजह से पार्क बंद होने से डेरकी के शहरियों ने छुट्टी के दिन पिकनिक मनाने के लिए दरिया सिंध का रुख कर लिया है। दरिया सिंध पर आए हुए लोगों ने कश्तियों में सवार होकर दरिया सिंध की लहरों और मौजों में कश्तियों पर सेल्फियां बनाते हुए लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। एंजॉय करने आए हैं। 3-4 महीने से लॉकडाउन था, कोई घूमने की जगह नहीं थी, पार्क वगैरह सारे बंद थे, तो अभी जो जैसे ही थोड़ा मौका मिला हमें गुड्डू बैराज घूमे हैं, इधर दरिया के सारे लोग आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम भी अपने दोस्तों भाइयों के साथ आए हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। इधर आके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। घूमने आए हैं, लॉकडाउन की वजह से सारे पार्क वगैरह तो बंद लगे पड़े हैं, तो हम इधर आए, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। दोस्त के साथ है, छोटा भाई भी साथ आया है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दरिया सिंध की मौजों और लहरों का नजारा देखने के लिए लोग कश्तियों में सैर कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद मारूफ सुमरो के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, सच न्यूज, डेरकी।
इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट settv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।